Chapter 27. After that, all the chapters are excluded from the reduced IUC syllabus due to the corona pandemic. So I am going to start the chapter 27. Chapter 27. What is chapter 27 and what it all about? We have to discuss all the things related to this topic. So what is chapter 27? Let me confirm first the syllabus and after that I will tell you. Don't worry children. Okay. So chapter 27 is all about wave motion. What about wave motion? Chapter 27 is all about wave motion. Wave motion. Wave motion. Speed of wave motion. I already discussed all the concept related to the wave and the equation of plane progressive harmonic wave, particle velocity, wave velocity and all the other related phenomena to the wave. This chapter is dedicated to the speed of the wave motion. What is the speed of the wave motion? Speed of wave motion. Speed of wave motion. Children, you need not to worry about the derivation of these formulas because formulas are not very important. Okay, so you know that the mechanical waves are of two types. Mechanical waves are of two types, the longitudinal one and the transverse one. The longitudinal and the transverse wave. So the first formula, the speed of a longitudinal wave. The speed of a longitudinal wave. Longitudinal wave. Speed of longitudinal wave. So what is the general formula? The general formula for longitudinal wave in a medium, longitudinal wave in a medium V is equal to under root E by rho. Guys, you need not to confuse by the E as energy. Okay, E is the modulus of elasticity. The speed of longitudinal wave is the modulus of elasticity. This is the general formula where E is modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Note down this one. V is equal to under root E by rho. V is equal to under root E by rho. Speed of longitudinal wave. जनरल फार्मूला. अब अगर यही मीडियम, अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में भी आपको हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर में बता रखा है. यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड मीडियम के लिए आएगा. बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा सिचुएशन पर. लॉन्गिट्यूडनल वेव बल्क मॉड्यूलस पे भी डिपेंड करेगा. तो पहले ये फार्मूला नोट कीजिए. स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, जनरल फार्मूला ये है इसका. ये जनरल फार्मूला हो गया. अब the speed of longitudinal wave in an extended solid medium
the speed of longitudinal wave in an extended solid medium v is equal to under root b plus 4/3 नीटा अपॉन रो। देखिए फार्मूले का एसेंस सेम है, बल्क मॉडुलस भी आ गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आ गया। वेयर बी, व्हाट इज बी? वेयर बी, बी क्या है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ elasticity, and what is neta? Modulus of rigidity, modulus of rigidity, and what is rho? Density, density of solid। तो ये एक एक्सटेंडेड सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव का फार्मूला है। अब अगला फार्मूला था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। बेटा इसको नोट कीजिए, नोट इट डाउन। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड बार और रॉड, इन अ सॉलिड बार, इन अ सॉलिड बार और रॉड। What is V? V is equal to under root y by rho, where y क्या है? Young's modulus of elasticity, Young modulus of elasticity, y is Young modulus of elasticity। ठीक, अब तो ये सॉलिड के लिए हो गया। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ लिक्विड मीडियम, द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ लिक्विड मीडियम, the speed of a longitudinal wave in a liquid medium, V is equal to under the root B by rho। You know that, where B bulk's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity। अच्छा, ये जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड मीडियम है और गैसियस मीडियम भी कर लीजिए, गैसियस मीडियम में भी यही फार्मूला लगता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम में फार्मूला सेम लगता है। ठीक है बेटा, अब ये इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए शायद थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं था, तो अब हम फोकस कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें जो एक चीज आपको सिखानी है वो ये कि न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस एंड लाप्लास करेक्शन, ये आपने 10th में या 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन एनीवे हम फिर से इसको यहाँ पर ओवरहॉल कर दे रहे हैं, रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक, देखो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड इन गैसियस मीडियम, ये सर आइजैक न्यूटन का फार्मूला था। न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड इन गैसियस मीडियम। ठीक, ठीक है। Newton assumed that when longitudinal wave travel in a gaseous medium,
when longitudinal wave travel in a medium Newton assumed that when longitudinal wave travel in a medium, the temperature of the medium remains constant. The temperature of the medium remains constant. Temperature of the medium remains constant. So what is the value of B? V is equal to B by rho. B by rho. Is it this so? No. You know that B is the bulk modulus of elasticity and rho is the density of gaseous medium. ठीक है, तो what is B here? Newton assumed that B is isothermal bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. This is the assumption of Newton. Okay. Bulk modulus of elasticity. ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम एयर मीडियम की बात करें, ठीक है, तो इन एयर मीडियम, अब इसको पहले नोट करो, ये न्यूटन फार्मूला फॉर गैसियस मीडियम है, इसको नोट कर लो। अब इसी के आगे देखो, उन्होंने कहा कि मीडियम कैसा है, एक जब साउंड वेव मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक्स कहती है एक प्रोसेस होता है जिसे तुम कहते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो वी नो दैट P B, यहां पर P B हो जाएगा। ये कैसे होता है ये छोड़ दो, लेकिन ये हो जाएगा, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस P की वैल्यू क्या है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ एयर, रो एयर जो होती है वो होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास एक फार्मूला है V इज इक्वल टू अंडर दी रूट V बाई रो, ठीक है, तो V बाई रो में हम P बाई रो लिखेंगे सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता हुआ जाता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। उससे हम चाहे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा चलो निकाल भी देते हैं P बाई रो। PV कैसे हुआ, तो P बाई रो पहले हम समझा दें, ये हुआ 1.01 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1.29। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड। बट एक्सपेरिमेंटली दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम। याद रखिएगा, गैसियस मीडियम में हमने जो प्रैक्टिकली वैल्यू कैलकुलेट की है वो 332 मीटर पर सेकेंड है, यानी 332 मीटर पर सेकेंड। तो वो वैल्यू तो यहाँ नहीं है भाई, देखिए 280 मीटर पर। बट एक्सपेरिमेंटली we calculated the speed of sound in gaseous medium. The speed of sound in gaseous medium
v की वैल्यू जो है वो अंडर द रूट, अरे v की वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है, तो विच इज इनकंसिस्टेंट है, कैलकुलेटेड बाई विच इज मच ग्रेटर, विच इज मच ग्रेटर than the speed calculated by न्यूटन। तो न्यूटन का ये असम्पशन कि जब साउंड किसी मीडियम में, साउंड जब गैसेस मीडियम में प्रोपेगेट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये रॉन्ग है। अगर वो राइट होता तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई 332 वैल्यू यही आनी चाहिए थी, यानी 280 मीटर पर सेकेंड आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसे हम करेक्ट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं बच्चों, करेक्ट करते हैं। अब हम इसे करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे, अब वो भी आप देखिए कैसे करेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके आगे मैं पढ़ूं तो पहले मैं बता दूं कि आपको P हमने B कैसे लिखा है। अच्छा तो इसे नोट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो हम ये बता दें कि आपने P को B को कैसे लिखा है। देखो, वी नो दैट, हमने एक लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अगर हम P इंटू dV प्लस V इंटू dP पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 लिख दें, तो देखो बच्चों अब ये P इंटू dV इज इक्वल टू माइनस का V इंटू dP। अच्छा, तो अब ये हम लिख देंगे dP इज इक्वल टू माइनस का P अपॉन V इंटू dV। और ये जो, तब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, प्रेशर अपॉन प्रेशर यानी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। अब ये इसे लिखा दिया, ये क्या है, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो आपने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये था P का B में समावेशन, ठीक। अच्छा, अब लाप्लास ने जो करेक्शन किया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि न्यूटन का फार्मूला इस बात से तासिर कि वो साउंड की स्पीड गैसेस मीडियम में सही निकाल ले, तो लाप्लास ने क्या करेक्शन किया वो देखिए। तो लाप्लास सजेस्टेड दैट then sound travel in gaseous medium, Laplace suggested that when sound travel in gaseous medium, Laplace suggested that when sound travel in gaseous medium, the temperature not remains constant. The temperature does not remains constant. Rather, changes take place adiabatically. Rather, changes take adiabatically. एडियाबेटिकली। अब अगर एडियाबेटिकली चेंज कर रहा है तो फिर बॉयल्स लॉ का तो कोई सवाल नहीं, तो अब तो यहां पॉइजन लॉ आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉइजन लॉ
पॉइजन्स लॉ, P v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, which is the governing equation of sound traveling in a gaseous medium. PV is equal to gamma is equal to constant is the governing equation. ये क्या है बेटा? governing equation. governing equation of speed of sound in gaseous medium. Speed of sound in gaseous medium. In gaseous medium. ओके बच्चों, तो अब हम देखो इसे करेक्शन करेंगे। तो ये लाइन नोट करने के बाद, इस लाइन को नोट करने के बाद आपको देखना होगा क्या आगे हम क्या कर रहे हैं। देखिए फिर से हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, P इंटू गामा dV, V और यहां पर एक बार और लिखना पड़ेगा V गामा माइनस 1 इंटू dV प्लस, फिर क्या लिखोगे बेटा? फिर लिखोगे V की पावर गामा इंटू dP इज इक्वल टू 0। तो PV की पावर PV गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू V की पावर गामा इंटू dP। देखते जाओ, ये माइनस साइन के साथ, तो गामा P इंटू dV इज इक्वल टू माइनस V की पावर गामा अपॉन V की पावर गामा इंटू V की पावर माइनस 1 इंटू dP। देखो बच्चों, V की पावर गामा से V की पावर गामा कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, तो अब V को इधर ले जाओ और V की पावर माइनस 1 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी गामा P अपॉन V इज इक्वल टू dP अपॉन dV। या V को इसके नीचे रख दो और तो ये क्या हो गया? एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या हो गया? BA। BA क्या है? एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इसमें बताया जाता है। तो बच्चों अब इसको तो फार्मूला हमें मिल गया, तो लाप्लास के अकॉर्डिंग द करेक्ट फार्मूला अकॉर्डिंग टू लाप्लास द करेक्ट formula for speed of sound in gaseous medium क्या होनी चाहिए भाई? P को हम गामा P से रिप्लेस कर देंगे, गामा P अपॉन रो, ठीक है। वेयर गामा क्या है बेटा? एटॉमिसिटी, यानी रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। ये क्या है? एटॉमिसिटी है, Cp अपॉन Cv। नाउ फॉर एयर मीडियम, अब हवा के माध्यम के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। और एटॉमिसिटी कितनी होती है? क्योंकि डायटॉमिक माना जाएगा, तो डायटॉमिक गामा डायटॉमिक क्या होता है? गामा
गामा डाई एटॉमिक की वैल्यू 1.4 और एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, देखिए नीचे जगह है, नहीं है, अच्छा तो वो इधर करते हैं। अब जब सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपको V साउंड दिखाई देगी। V साउंड कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से चाहे तो। 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.29 और ये लमसम 332 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इसका मतलब जो न्यूटन का अजम्पशन था वो रॉन्ग था कि जब साउंड किसी गैसेस मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो साउंड के प्रोपेगेशन से टेम्परेचर मीडियम का कांस्टेंट रहता है। नहीं भाई, सिस्टम का टेम्परेचर एडियाबेटिकली चेंज करता है, ऐसा हमको लाप्लास ने प्रूव करके बताया, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये था स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड तो हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के केसेस बताए। अब हम आपको स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का केस बताते हैं। प्रेशर मत लीजिए, काम कीजिए। वेव मोशन, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पहला केस था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा केस है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो आपको पता ही होगा ट्रांसवर्स वेव के बारे में, है ना। जब किसी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव चलती है तो मीडियम के पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव की प्रोपगेशन के ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं, उसे हम स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अरे वो क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स वेव के लिए तो जनरल फार्मूला, तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड मीडियम V is equal to under the root neta upon rho, where neta क्या है भाई, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड के लिए तो डिफाइन ही होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और रो क्या है, डेंसिटी। रो क्या है बच्चों, डेंसिटी। तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड मीडियम V इज इक्वल टू अंडर रूट नीटा अपॉन रो हो गया। क्या हो गया, नीटा अपॉन रो हो गया। बात समझ में आ रही, ठीक। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब इसी में दूसरा फार्मूला, इसे नोट कर लीजिए। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, किसी तार में ट्रांसवर्स वेव की वो क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रेच ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेट, STRET स्ट्रेट स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, ये होता है V इज इक्वल टू अंडर द रूट टेंशन। क्या, टेंशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी। टेंशन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके बच्चों, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। नहीं, स्पीड और ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, सॉरी बेटा थोड़ा सा हमसे चूक हो गया। टेंशन पर यूनिट मास होता है। ये यहां ये m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये फार्मूला याद रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ।
तो v की वैल्यू किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर T/m क्या होती है, T/m। ठीक है, तो ये था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, टेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसी को चाहे कि तुम एक और फार्मूले से वो कर सकते हो, अंडर द रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी हो गया ये। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, effect of pressure on the speed of longitudinal wave। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपगेशन की स्पीड का एक्सर्टेड मीडियम के प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, if the temperature of the gas remains constant, if the temperature of the gas remains constant, then there is no effect of pressure, of the pressure change on the speed of sound। ठीक है, if the temperature remains constant, there is no effect of change in pressure। If the temperature remains constant, there is no effect of change in pressure, pressure on the speed of sound, on the speed of sound, speed of sound। ठीक है बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, ये याद रखना। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सुनो बेटा, वी नो दैट from ideal gas equation PV is equal to RT, है बात नहीं, PV is equal to RT। तो ये जो V है यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, तो M अपॉन रो, ये हो गया। तो अब P M बाई रो इज इक्वल टू R इंटू टी। प्यारे बच्चों, P बाई रो की जगह RT बाई M लिख दो, P बाई रो की जगह RT बाई M लिख दो। वाह भाई वाह, ठीक। तो अभी हमने चीचा लाप्लास का इक्वेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है चीजा, लाप्लास का इक्वेशन पढ़ा। तो लाप्लास का इक्वेशन ये कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम जो होती है वो अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होती है। गामा एटॉमिसिटी है, पी प्रेशर है और रो डेंसिटी है। इज इट क्लियर? तो
अब hence speed of sound ये क्या हो जाएगी बेटा, v इज इक्वल टू अंडर द रूट p गामा p अपॉन रो से, ये हो जाएगी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। क्या हो गई, गामा आर टी बाई एम। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली, इसका कंक्लूजन हम यहां लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली proportional to the square root of the temperature। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पड़ता है, स्पीड बढ़ जाती है अगर ह्यूमिड हो। बाकी इसमें सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक ये सब छोड़ छाड़ दो बस। दैट इज द एंड ऑफ द डे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दैट इज इंटरफियरेंस एंड बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, etc etc. These all are excluded from the latest syllabus. You have to prepare well for the next exam. Okay, so note it down. I am going to upload the 3 and 4 videos of important numericals from the entire curriculum, from which I am going to set down your paper. So you should not worry about the much and more. A list of important derivations in numericals will be uploaded soon for your better preparation. Go ahead with your preparation and best of luck, and thank you for watching my all the videos, and please do subscribe and like and share. Thank you very much. Okay.